हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 7 ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਡਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਡਾ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਿਆਓ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂ ਬਹੂ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ। ਹੁਣ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਲਾਈਨਸ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮ। ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਬਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਐਂਗਲਸ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ, ਬਰਾਬਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ, ਸੇਮ ਮਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਵੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਆ ਵੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੋ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਊਗੀ।
सेम टू सेम, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी किसी पासियों, बिल्कुल इक्को जिहियां है ना। तो हुण जिहड़ियां कंगरूएंट ट्रायंगल्स हुंदियां ने, इन्हां दियां जिहड़ियां साइड्स ने वो भी फिर आपां बड़े ध्यान नाल लिखदे हां, ते उन्हां नूं लिखण दा तरीका जिहड़ा है वो देखते हैं आपां किवें हुंदा है। जिवें तुसीं देखो ध्यान नाल की है, इहदी जिहड़ी साइड है ए सी वो किहदे वर्गी है, इहदी साइड पी आर वर्गी है, ते इहदी जिहड़ी साइड ए बी है वो देखण नूं बिल्कुल इहदी साइड पी क्यू वर्गी है। तो जे मैं इत्थे लिखां त्रिभुज पी क्यू आर, ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੇਢਾ ਐਸ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਕਿਊ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ देखो ये बिल्कुल पी क्यू बराबर है ए बी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਦੋ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬੀ क्यू आर, ਤਾਂ क्यू आर ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ क्यू आर ਉਹ ਹੈਗਾ बी सी ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ क्यू आर, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ बी सी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ 7.1। ਅਭਿਆਸ 7.1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। 2 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ, 2 ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਲੈਂਥ, ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ सेम लेंथ, तो ये तुसी लिख देना है। देखो इफ दे हैव सेम लेंथ। हुण दो एंगल्स की गल करते हैं। अमंग 2 कंगरूएंट एंगल्स, वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। हुण देखो दोनों एंगल की ने, कंगरूएंट ने। अगर एक 70 डिग्री तो दूजा कितना होगा, वो भी 70 का होगा। When we write angle A is equal to angle B, we actually mean that measurement of angle A is equal to measurement of angle B। ठीक है, ये मैं इत्थे थोड़ा गड़बड़ हो गया। M का मतलब है मेजरमेंट, मतलब जिन्ना डिग्री का एंगल ए है उन्नी डिग्री का एंगल बी है। फिर उस तो बाद है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर द कंगरूएंट शेप्स। तो हुणे तुसीं आप लभणियां ने तुहाडे आले दुआले ऐसियां चीज़ां दो जिहड़ियां देखण नूं इक्को जिहियां लगदियां होण, तो वो तुसीं हुण वधिया वधिया एग्जाम्पल्स लभ के आपदे आले दुआले तो मैनूं लिख के भेजणियां ने। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंगरूएंट, देखो निशान है कंगरूएंट का, तुहानूं पहलां बना के दिखाया सी, बराबर का निशान उपर होड़ा है ना। सो FED दे तुहानूं दस्सिया सीगा भी बराबर साइड्स उस जगह ते लिखियां जांदियां हुंदियां ने। तो इसदा मतलब है कि AB FE दे इक्वल है, BC ED दे इक्वल है, AC FD दे इक्वल है। मतलब पहले दो तो ये भी पहले दो, ये पिछले दो तो ये भी पिछले दो है ना। ये आले दुआले वाले 2 नंबर तो ये आले दुआले वाले 2 नंबर बराबर। तो हुण उन्होंने कहा भी अगर ABC ट्रायंगल FED ट्रायंगल के कंगरूएंट है, सरबंग-सम है, तो वो करस्पोंडेंस पार्ट आ दिते हुए ने। देखो करस्पोंडेंस दी हुई है भी AB FE दे, BC ED दे, AC FD दे, इदां इक्वल ने। आही तरतीब दे विच जिहड़ी तरतीब 'च लिखिया।
ਰਾਈਟ all the corresponding congruent parts of the triangles। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ AB ਤੇ ਇੱਧਰ FE ਹੈ ਨਾ, BC ਇੱਧਰ ED, ਇੱਧਰ AC ਇੱਧਰ FD। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 6। ਸੋ ਇਹ A ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ F ਦੇਖੋ, B ਦੇ E ਤੇ C ਦੇ D, C ਦੇ D। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਹੈ ट्राइंगल DEF कंगुरेंट टू ट्राइंगल BCA है ना। तरतीब तुहानूं याद आ गया होगा भी DE दे इक्वल BC, EF दे CA, DF दे BA। मतलब जिथे जिथे जो पार्ट है दूसरी का भी वो इक्वल पार्ट उत्थे उत्थे ही लिखना है, पहले नंबर ते पहला फिर दूसरा फिर तीसरा बराबर पा के। तो हुण असीं देखना है ट्राइंगल BCA करस्पॉन्ड्स टू, हाँ जी, E दे इक्वल किहड़ा पार्ट होगा जी। देखो E विचाले है तो इहदा विचाले देखो C। तो हुण आपां इत्थे लिखांगे ये वाला निशान पा के इधर C, हाँ जी। EF दे किहड़ा आऊगा, पिछले दो अखर ने CA है ना, ये इक्वल लिखांगे CA। F, हाँ जी, F किन्नवें नंबर ते तीसरे ते, इधर तीसरे ते की है A, तो वो जी निशान जाए जाए ये पाया होया A। चौथे ते की है DF, हाँ जी, ए DF यानी कि आले दुआले वाले दो है ना। इधर की आऊगा BA, इधर की आऊगा BA। तो DF च की लिखांगे BA। सो ये नाल अपना जिहड़ा एक्सरसाइज 7.1 का काम सीगा वो हो गया। हाँ जी बच्चों, अगे आपां अभ्यास 7.2 करना है, एक्सरसाइज 7.2। ये तो पहला सानू कुछ नियमां बारे पता होना चाहिए हैगा। वो किहड़े नियम ने, त्रिभुजां जिहड़ियां ने ट्राइंगल्स ने वो कंगुरेंट कदों कदों होणगियां है ना, उन्होंने असी देख के किवें दस सकते हैं बिना एक दूजे के उपर रखे। असी किवें दस सकते हैं भी ये ट्राइंगल्स कंगुरेंट ने, मतलब एक दूजे के सेम कॉपी ने या नहीं। तो वो 4 नियम ने। पहला नियम है SSS, साइड साइड साइड। ये नियम की है, जदों ट्राइंगल्स दियां तीनों साइड्स एक दूजे दे इक्वल होण। देखो जिमें ABC दे विच ते PQR दे विच आ भी देखो AB 1.5 है, वो किहदे इक्वल है, PQ दे 1.5। BC 2.5 है, ये QR 2.5 सेंटीमीटर है। ये AC जिहड़ा वो 2.2 है, तो इधर जिहड़ा साडे कोले PR वो भी 2.2 है सेंटीमीटर। तो तिन्ना साइड दे जिहड़ियां दोनों ट्राइंगल्स ने, दोनों त्रिभुजां ने, इन्हां दियां सारियां साइड्स एक दूजे दे इक्वल ने। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। देखो जी आ इहदे, आह इहदे, आ इहदे, तां की बन गया साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल। तो जदों ट्राइंगल्स दियां तीनों साइड्स इक्वल होण उदों वो की हुंदियां ने, कंगुरेंट हुंदियां ने, एक दूजे की कॉपी हुंदियां ने। उस नियम नूं की कहंदे ने, SSS क्राइटेरिया या रूल भी कह सकते हो तुसीं, SSS रूल, साइड 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 रूल। एक नियम ये हो गया। उस तो बाद साडे कोले अगला जिहड़ा नियम है वो आ जांदा हैगा SAS। इत्थे देखो अगला नियम आ जाता है SAS,
साइड एंगल साइड। तो हुण तुसीं समझ गए होवोगे, दो साइड इक्वल एक एंगल इक्वल। जिवें देखो इत्थे है दो साइड्स इक्वल ने जी, देखो ये इक्वल आ साइड है 7-7 सेंटीमीटर, ये इक्वल आ साइड है 5-5 सेंटीमीटर दोनों, तो एक एंगल इक्वल है। देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों इक्वल ने। तो यह किहड़ा नियम है, जदों दो साइड्स इक्वल होण इन्हां दियां आपस च, तो एक एंगल इक्वल होवे, SAS रूल। तो इदां भी ट्रायंगल्स कंगरूएंट हुंदियां ने। उस तो बाद एक होर जिहड़ा रूल है साडे कोले हुंदा है, वो है ASA। ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल होण, एक साइड इक्वल होवे। जिवें इत्थे है एक साइड 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, एक एंगल 40, ये भी एक 40, ये एक 60, दूसरा ये 60। तो देखो दो एंगल इक्वल हो गए 40 40 60 60, एक साइड इक्वल होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये किहड़ा रूल लगेगा, ASA। तो जदों ट्रायंगल्स दे विच दो एंगल्स ते एक साइड इक्वल होवे, उदों भी वो कंगरूएंट हुंदियां ने। हाँ जी, अगला एक नियम है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज ते साइड। हुण इहदे च राइट एंगल मतलब 90 का एंगल हैगा इन्हां दोनों च, एक हाइपोटेन्यूज यानी कि टेढ़ी साइड नूं असीं हाइपोटेन्यूज कहने हुंदे आगे, है ना, पंजाबी च कारण 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एक साइड कोई भी हो सकती है, आ उपर वाली थल्ले वाली, वो थल्ले वाली या उपर वाली। जिवें इन्हां च आ बराबर है, देखो 3, ये भी 3। तो ये किहड़ा रूल लग गया, RHS। तो ये 4 रूल ने जिहड़े असीं यूज़ करने ने। हुण असीं एक्सरसाइज देखते हैं, सानूं पुछया होया हैगा भी किहड़े-किहड़े रूल्स ने जिहड़े वो अपलाई होणगे। जिवें पहला क्वेश्चन है, सानूं दित्तियां होईयां ने दो ट्रायंगल्स ABCDEF, सानूं तिनों साइड्स इक्वल देतियां। देखो जी AC इज इक्वल टू DF, AB DE दे इक्वल, BC EF दे इक्वल। तो तिनों साइड्स इक्वल हो गई, किहड़ा रूल लगूगा, SSS। तो ये असीं लिख दांगे SSS, साइड 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 रूल। अगले वाला, ये देखो दो साइड्स इक्वल ने, है ना, ZX जिहड़ा वो RP दे इक्वल है इन्हां दो ट्रायंगल्स दे विच, आ वालियां दो दे विच। तो दो साइड्स इक्वल ने, एक एंगल इक्वल है, तो असीं किहड़ा रूल लावांगे, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दो साइड्स एक एंगल। हुण इहदे च देखो दो एंगल ने, एंगल के निशान ने, देखो दो एंगल इक्वल ने, एक साइड इक्वल है, किहड़ा रूल लगूगा, एंगल साइड एंगल। देखो आ वालियां ट्रायंगल्स ने। हुण आ तो तुसीं समझ गए होंगे, 4HS लगूगा क्योंकि राइट एंगल आ गया। एक राइट एंगल है, एक साइड है, एक हाइपोटेन्यूज है। देखो आ टेढ़ा टेढ़ा हाइपोटेन्यूज है, एक आ साइड इहदे इक्वल है, एक राइट एंगल इक्वल है। उस तो अगे नैक्सट क्वेश्चन च सानू दसता कि इहदे च रूल किहड़ा लाउणा है, SSS। ठीक है, SS रूल सानू दसता, ते नाल सानू कहा है, आ देखो ART करस्पोंडिंग टू कंगरूएंट टू ट्रायंगल PEN, आर्ट ते पेन, है ना। रूल किहड़ा लाउणा है, SSS। तो जिहड़ियां इक्को जिहियां साइड ने, देखो AR दे इक्वल की है PE, RT दे इक्वल EN, ते AT दे इक्वल PN। तो वो साइड लिख देंगे,
हाँ जी, AR दे PE, RT दे EN ते AT दे PN। अगे फिर वही गल है, देखो RT दे इक्वल RT दे EN ते PN दे AT। हाँ जी, AT PN दे इक्वल है। हुण दो एंगल की गल करनगे वो, है ना। रूल किहड़ा लाउणा है, ASA। साइड तो उन्होंने देती है, देखो साइड एक दस दी, दो एंगल लभणे ने। हुण आपां तां एंगल जिहड़े मर्जी दो लिख दो। AT लिखी है तो एंगल आप लिखांगे एंगल, हाँ जी, AT इक्वल है PN दे, तो एंगल लिखांगे PA दे इक्वल NT दे इक्वल। ये चीज़ लिख दो। हाँ जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5। टू ट्राइंगल्स आर कंगुरेंट RAT, ये बराबर पार्ट लिखने ने। आ दो ट्राइंगल्स की ने, कंगुरेंट ने। आ इक्को जे निशाना का मतलब की हुंदा भी इक्को जिहियां साइड्स ने। आ साइड इहदे इक्वल है, आह इहदे, आ एंगल इहदे, आ एंगल इहदे ते आह एंगल इहदे इक्वल। इक्को जे निशाना का मतलब ये हुंदा। हुण ये कंगुरेंट ने, तो उन्होंने दिता होया है भी RAT दे बराबर मैं किवें लिखां इनू, है ना। तो पहला RAT है ना, RAT तो पहला R है। R दे वर्गा किहड़ा एंगल है, देखो इत्थे W, तो पहला W लिखांगे। दूजा अखर है इत्थे A, तो A दे वर्गा किहड़ा एंगल है जी, इधर वो हैगा O, ठीक है। तो इत्थे O लिखांगे। तीजा हैगा T, तो T दे नाल दा किहड़ा एंगल है जी, तीन लाइनां वाला, वो है N, तो N लिखांगे। तो ये बन गया आंसर साडा। अगे है 6th क्वेश्चन। 6th दे विच ये च भी आपां बराबर ट्राइंगल लिखनी है। BCA दे, BCA दे तो इक्को जिहा एंगल देखांगे। देखो हुण B दे इक्वल, इधर भी B है ना, तो इधर किहड़ा आऊगा ट्राइंगल, पहला तो BA आऊगा। C दे वर्गा किहड़ा है T, है ना। तो फिर अगे की है A, तो वो A ही आऊगा, ट्राइंगल BTA। ये है क्वेश्चन 6 का दूसरा पार्ट, ट्राइंगल QRS। QRS तो Q दे वर्गा एंगल देखो भाई T है, R दे वर्गा P, तीसरा की बच गया Q आप बच गया, क्योंकि ये साझा है ना इन्हां च। तो ये बन गया ट्राइंगल QRS कंगुरेंट टू ट्राइंगल TPQ।